ચલો સેવા ઠીક કર્યું. સારું છે. સારું છે. જોવું પડશે. ઇમ્પોર્ટન્ટ હશે તો ઇમ્પોર્ટન્ટ નહીં હતું. મોટી મોટી કેલ્ક્યુલેશન બધું વિચારવું. અમે 30 બાજુ 15 એ બુક આ બિલ્ડિંગ માં ધક્કા મારે મારી પાડી બહુ પ્રયત્ન કરતો મારે ઘરે એવું એડ્રેસ See, inventories we started with reconciliation. One sum was for homework, did you get it? एक सम होमवर्क था. Fifth sum was for homework. Fifth sum का आंसर आ रहा है 2630,576. That's okay. 5 rupees. 2630,576, 571, 565, 575, that's all fine. That's what will be open to होने वाला है. That's all right. Is it clear? Hello. All of you. Got it? So let's continue with reconciliation. Remember what was reconciliation? Reconciliation में क्या होता था? Reconciliation. Listen now. In reconciliation, what used to happen? We weren't able to calculate the value of physical stock on the year end. Yes? Physical stock year end पे possible नहीं होता था due to some or the other reason. Maybe chartered accountants are not free, articles are not available, production process cannot be stopped, trading process cannot be stopped. So all the activities needed to be at a halt at the time of calculation of stock. बराबर है? At the time of stock, you had to stop all the activities which might not be possible on year end, So for this reason, what are you supposed to do? You might calculate the physical value of stock maybe a day before, maybe a week before, or maybe a week after. तो वहां से अपने को क्या करना है? अपने को वापस से ईयर एंडिंग का स्टॉक ढूंढना है. और वो स्टॉक फिजिकल स्टॉक होना चाहिए कि ओनरशिप स्टॉक? ओनरशिप स्टॉक ढूंढने के लिए हमारे पास 2 क्वेश्चंस हमने बनाए हुए हैं. What are those 2 questions? Number 1, are you the owner of these goods on your end? And number 2, are the goods in the physical inventory on the date of stock? The answer to both the question is yes. फिजिकल स्टॉक को ही आप स्टार्टिंग पॉइंट लेके ढूंढ रहे हो गुड्स. तो अगर फिजिकल स्टॉक में भी और ओनर भी हो तो कुछ करने की जरूरत नहीं है. फिजिकल स्टॉक में भी नहीं है और ओनर भी नहीं हो तो भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 99% फिजिकल स्टॉक इज ओनरशिप स्टॉक. एंड देन वी सॉ इफ वी आर द ओनर बट दे आर नॉट इन द फिजिकल स्टॉक, देन वी आर सपोज्ड टू एक्ट. तो उसको पॉइंट लेके लेना है. तो उधर नहीं है तो इधर एक्ट करो. एंड इफ यू आर नॉट द ओनर बट दे आर इन द फिजिकल स्टॉक, तो माइनस करना, क्योंकि आप रियल ओनर नहीं हो गुड्स के. बराबर है? तो ये हमने देखा था. चाहे आप फिर 23rd से 31st जाओ या फिर 7 से 31st आओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है ना? सही बात. उसके बाद हमने देखा था पॉलिसी ऑफ द कंपनी विद रिगार्ड्स टू ओनरशिप, जो हमने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इनवॉइस या गुड्स जो भी पहले आए. ओके, कभी कभी पॉलिसी प्री डिसाइडेड होती है कि इनवॉइस बेसिस पे रिकॉर्ड करेंगे या स्टॉक बेसिस पे रिकॉर्ड करेंगे. अगर आपको कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है तो आप अज्यूम करते हो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. सो इनवॉइस या स्टॉक जो भी पहले आए
आप ओनर बन गए। इनवॉइस या स्टॉक जो भी पहले आप ओनर बन गए, या इनवॉइस या स्टॉक जो भी पहले निकले आपकी ओनरशिप चली गई है। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस इज द जनरल असम्पशन। पहले आया गुड्स या इनवॉइस, आप ओनर बन गए। पहले चला गया गुड्स या इनवॉइस, आप ओनरशिप लूज कर दिए। इज इट क्लियर? हेलो, याद है ये आपको ओनरशिप डिटरमाइन करने के लिए काम आता है। फिर हमने एक अच्छा खासा प्रॉब्लम किया था लास्ट लेक्चर में, क्वेश्चन नंबर 10 किया था आई थिंक, नहीं क्वेश्चन नंबर 24 किया था, 20 किया था, 20 was the last question, right? Now let's take question number 10 on similar lines. Question number 10. See what are they given? यही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही है आपके स्टॉक चैप्टर में, रिकंसिलिएशन पार्ट। वैसे 6 वेराइटीज है इसमें, वी आर ऑन द सेकेंड वेराइटी राइट नाउ। ओके, देखो क्या दिया। See, focus. What are they given? Physical verification of the stock in a business was done on 23rd June. Physical verification कब हुआ था? 23rd June. The value of stock was 75 lakhs. The value of physical stock on 23rd June is 75 lakhs. Make a small note for that. Value of physical stock was 75 lakhs. Now, what's your target? Your target is to find out value of ownership stock. On which date? Come on. 30th June, right? 30th June. Determine the value of stock as on 30th June. Determine the value, मतलब they are asking about ownership value. Is that right? Now, let's continue. Foreign transactions took place between 23rd and 30th of June. The first one. Out of the goods sent on consignment, goods at cost worth 4,60,000 were unsold. Now, ये मैंने आपको तभी भी बोला था, इसका assumption याद रखना है कि ये जो गुड्स हैं कंसाइनमेंट वाले, ये कब सेंड किए होंगे? क्या 23rd और 30th के बीच में सेंड किए हैं? पहले सेंड कर दिए। क्यों? कंसाइनमेंट तो पूरे साल भर चालू रहता है, ये खाली लास्ट डेट का आपको कितना कंसाइनी के पास पड़ा या नहीं पड़ा वो चेक करना है आपको। और एक चीज याद रखना है कि कौन सा अज्यूम करना है, फिर 23rd और 30th के बीच में क्या हुआ है, ये सब क्या अज्यूम करना है? परचेज, सेल, परचेज रिटर्न, सेल। इनके बारे में कुछ नहीं दिया तो ये 23rd और 30th के बीच में, बाकी के बारे में कुछ नहीं दिया तो पहले ही होता है। तो कंसाइन्ड गुड्स आपके पहले ही सेंड कर दिया 23rd से पहले, तो इनके आप 30th जून को ओनर हैं कि नहीं? कंसाइनमेंट याद है आपको कि मैंने अपने एजेंट को माल भेजा हुआ है, ओके, वो एजेंट है, उसको मेरे बिहाफ पे सेल करना है। एजेंट जो माल भेजा हुआ है उसको मेरे बिहाफ पे सेल करना है, बराबर है? तो जब तक वो सेल नहीं करता तो वो स्टॉक का ओनर कौन है? मैं, हम लोग ओनर। एंड बेचने के बाद बायर ओनर बन जाएगा। अगर सेल ऑफ गुड्स एक्ट हो गया लॉ में, तो मुझे बताओ यहाँ पे हम लोग 30th, ये 4,60,000 का अनसोल्ड पड़े हुए कंसाइनी के पास, तो आर वी द ओनर ऑफ दीज गुड्स ऑन 30th जून? यस, वी आर द ओनर, हम लोग ओनर बनता है, बराबर है? फिर on 23rd June, are these goods included in the physical stock? No. Why? पहले जा चुके हैं, यहाँ पे वो assumption काम आता है। ऐसा मत सोचना कि 23rd और 30th के बीच में गया है, नहीं, वो गया होगा तो स्पेसिफाई करके देंगे, हाँ भाई ये डेट के बीच में गया है, नहीं दिया है तो मतलब पहले ही हो चुका है। तो यू आर द ओनर बट द गुड्स आर नॉट इन स्टॉक, सो ये ओनरशिप तो है लेकिन फिजिकली अपने पास नहीं है, तो व्हाट आर वी सपोज्ड टू डू? ऐड कंसाइनमेंट स्टॉक, ऐड कंसाइनमेंट स्टॉक, कितना है वो? 460। समझा ये पार्ट? नेक्स्ट, purchases of 8 lakhs were made, out of which goods worth 2,70,000 were delivered on 5th of July.
सो जब भी ऐसा परचेज सेल का सब डिविजन दिया हो आप उसका एक नोट बना लो और ब्रेक इट डाउन. ओके, तो परचेजेस में वैसे तो टोटल परचेज आर आई थिंक 8 लाख, मुझे 2,70,000 में अलग कर दूं. सो आई थिंक आई गेट 2,70,000 एक अलग एंड 5,30,000 एक अलग. इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, बट देख 2,70,000 अलग और 530 अलग. अब 270 के बारे में देखो क्या दिया. 270 का गुड्स वे डिलीवर्ड ऑन 5th of July, है ना. हेलो, आपने परचेज किया लेकिन 270 का गुड्स वे डिलीवर्ड ऑन 5th of July. सो इन गुड्स का इनवॉइस कब आया होगा? 23rd और 30th के बीच में आया होगा. और इनका डिलीवरी कब हो रहा है? या माल या फिजिकल स्टॉक बोलो, ये फिजिकल स्टॉक कब आ रहा है? 5th of July. So are you the owner of these goods on 30th June? Definitely yes, because we are following first come first serve basis. The moment you receive invoice or the moment you receive goods, you become the owner. So you are the owner on 30th June. Definitely yes. And are these goods in the physical stock on such 20? हो ही नहीं सकता क्योंकि 5th July को डिलीवरी हुई है ना. तो what am I supposed to do? What about these 5,30,000? इनका इनवॉइस कब आया है? 23rd और 30th के बीच में ही आया है. और इनका फिजिकल स्टॉक भी कब आया है? 23rd और 30th के बीच में ही आया है. तो बोलने का मतलब इनके आप ओनर भी हो 30 जून को, और क्या ये माल है 23rd को? क्यों नहीं है? क्योंकि माल कभी आया आपके पास? 23 के बाद. तो बेसिकली ये और ये दोनों का वैसे देखा जाए तो काम सेम ही हो गया. आप ओनर थे लेकिन माल आया नहीं, तो क्या करना है? दोनों ही ऐड करना है. तो दोनों को अलग अलग ऐड करो या दोनों को साथ में ऐड करो, चलेगा. और परचेज तो वैसे भी कॉस्ट प्राइस पर होते हैं. तो 8 लाख रुपया आई कैन ऐड टुगेदर. 8 लाख रुपया आई कैन ऐड टुगेदर. अलग अलग किया तो भी चलेगा. नहीं, why no effect? Are you the owner on 30th June? 23rd और 30th के बीच में इनवॉइस आया है. 23rd और 30th के बीच में गुड्स भी आया है. इसका गुड्स और इनवॉइस 23rd और 30th के बीच में आया ना. इसका गुड्स आ गया है, इसका यहीं पर आ गया होगा ना. कुछ नहीं दिया है तो कुछ नहीं दिया तो मतलब गुड्स और इनवॉइस साथ में आया ना. सो 23rd और 30th के बीच में इनवॉइस भी आया, 23rd और 30th के बीच में गुड्स आया. तो are you the owner on 30th? Yes. But where the goods in stock on 23rd? No, के बाद में आया. याद आया? Got it? Hello? सर एक इनवॉइस फिजिकल स्टॉक करता पहला है. आनु? क्या आनु? 530. आनु बनने साथ आएगा. सर अगर बनने साथ हो तो फिजिकल स्टॉक भी 23 ना जाएगा सर. 23rd नहीं, 23rd और 30th के बीच में. जब 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30th, 31st का रात को 11:59. Is this clear? 23rd और 30th के बीच में मतलब 23rd के रात के 12 बजे के बाद और 31st के रात को 12 बजे से पहले. Is this clear? हेलो, कंफ्यूजन है इसमें? एक्सप्लेन करो. बोलो मॉड्यूल समझ. बोलो बोलो. डाउट है ही नहीं. पूछो. बोल रहे हैं 31 तो होता ही नहीं है. 30 है. चलो थर्ड वन देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है. सेल्स वेर 23,80,000 which includes goods worth 5,40,000 sent on approval. Approval वाला याद है? Sale or return. Half of these goods were returned before 30th June, but no information is available regarding remaining goods. तो सेल का भी थोड़ा टुकड़ा कर दो. और भी आगे दिया है सेल का. Goods are sold at cost plus 20%. However, goods costing 1,50,000 had been sold for 1,10,000. तो याद हो ऑब्नॉर्मल प्राइस वाला सेल. तो बेसिकली अच्छा, ये गुड्स ऊपर वाले में पड़े कि नहीं पड़े?
पढ़े, कुछ नहीं दिया तो सारे के सारे पढ़े, नहीं पढ़े तो दे शुड स्पेसिफाई, नहीं तो सब कुछ ऊपर वाला सेल के अंदर पड़ा है। तो ऊपर वाला सेल टोटल ही था कितना 23,80,000। 23,80,000 में से हम लोग टुकड़े कर देते हैं। सबसे पहला तो 540 को अलग कर दो, वो SOR वाला गुड है, ओके। सेल और रिटर्न वाला है 5,40,000। अभी फिर अब नॉर्मल सेल मैंने लिखा था, याद है आपको? अब नॉर्मल सेल मतलब ये अब नॉर्मल प्राइस पे गया है, अब नॉर्मल प्राइस पे गया है ये गुड्स। अभी 150 का 1,10,000 में गया है। तो मुझे बताओ सेल्स के अंदर सेल्स आर एट विच प्राइस? सेल्स आर एट सेलिंग प्राइस, राइट? So this 5,40,000 is also selling price, right? So sales के अंदर 23,80,000 के अंदर अब नॉर्मल गुड्स का कौन सा वैल्यू होगा? 1,50,000 होगा कि 1,10,000 होगा? 1,10,000 ही होगा, 1,50,000 हो ही नहीं सकता है। क्यों? सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। ओ 20% प्रॉफिट में नहीं, वो तो लॉस में बिक है। देखो मैं आपको बोलूं, आप 10 साइकिल्स आपके पास है, 1,500 रुपए का कॉस्टिंग हुआ है। 10 में से 9 साइकिल्स आपने 2,000 रुपए में बेची, वो कर लो। 10 में से 9 साइकिल आपने 2,000 में बेची और एक साइकिल आपने 500 में बेची, तो आपका टोटल सेल वैल्यू क्या होगा? 10 में से 9 साइकिल आपने 2,000 में बेची और एक साइकिल आपने 500 में बेची, 18,500 हुआ ना आपका टोटल सेल वैल्यू, हुआ कि नहीं? तो इफ आई वांट टू सब डिवाइड दिस 18,500 नॉर्मल और अब नॉर्मल सेल में, तो 18,500 में अगर नॉर्मल सेल देखा जाए तो 18,000 हुआ और अब नॉर्मल सेल देखा जाए तो 500 हुआ ना, कि 1,500? कॉस्ट प्राइस तो और एक की 1,500 है, लेकिन सेल्स में सेलिंग प्राइस होता है कि कॉस्ट प्राइस? हाँ जी। तो हमारे जो 1,50,000 वाले गुड्स थे उनका सेलिंग प्राइस क्या था? 1,10,000। वो भी बिके हैं, बाकी सब भी बिके, लेकिन बाकी सब कॉस्ट प्लस 20% में बिके हैं और ये वाले 150 वाले 110 में बिके हैं। लेकिन 18,40,000 के अंदर क्या पड़ा होगा? 150 के 110। क्यों? सेलिंग। समझा अभी? तो 1,10,000 ये अलग हो गए आपके अब नॉर्मल सेल वाले। इसका कॉस्ट 150 है, इसका कॉस्ट क्या हम लोग ढूंढेंगे इक्वेशन बना के, और बाकी नॉर्मल सेल हो गए। नॉर्मल सेल कितने बचे आपके? टोटल 1840 थे ना, 2380 थे, 2380 थे, उसमें से ये दोनों हटाओ, 1730 हो गए नॉर्मल। लेकिन तीनों कौन से प्राइस पे कोटेड है? एसपी एसपी एसपी, तीनों एसपी बने। समझा भाई? एसपी चाहे ज्यादा हो चाहे कम हो उससे फर्क नहीं पड़ता, दैट इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ सेल्स, ओके। सो सबसे पहले तो हम लोग नॉर्मल सेल खत्म करते हैं। नॉर्मल सेल का मुझे बताओ इनवॉइस और स्टॉक, फिजिकल स्टॉक दोनों कब डिस्पैच हुआ होगा? 23rd और 30th के बीच में हुआ होगा। तो आर यू द ओनर ऑन 30th? डेफिनेटली नो, क्योंकि निकल चुका है इनवॉइस और स्टॉक। वर द गुड्स इन फिजिकल इन्वेंटरी ऑन 23rd? यस, बिकॉज उसके बाद क्या है ना, तो क्या करना है? माइनस करना है सेल्स नॉर्मल, दीज आर सेल्स नॉर्मल। फिलहाल मैं अलग अलग दिखा रहा हूँ, स्टेटमेंट में सब कंबाइन कर सकते हो आप, बट एट सीपी चाहिए तो सी प्लस पी एस पी होगा, यहाँ पे होगा कि नहीं? और कॉस्ट प्लस है ना, तो 100 प्लस 20 120 होता है। एसपी 17,30,000, तो व्हाट इज माय कॉस्ट? क्रॉस मल्टीप्लाई 1441667 1441667 14,41,667। ओके, ये गया दिमाग में पक्का? हेलो, ऑल वी गॉट दिस? हाँ जी, फोन पे करो। अभी
टेल मी द अबनॉर्मल सेल पार्ट. ये भी बेचारा सेल ही है, ये भी सेल है, ये भी सेल है, खाली इसका प्राइस अलग है. ये हायर प्राइस पे गया, ये लोअर प्राइस पे गया, लेकिन माल और इनवॉइस तो दोनों साथ में गए. तो इसका भी इनवॉइस और इसका भी फिजिकल स्टॉक कब डिस्पैच हुआ? इसका भी इनवॉइस और फिजिकल स्टॉक दोनों कब डिस्पैच हुआ? 23rd और 30th के बीच में. तो आर यू द ओनर ऑफ दीज गुड्स ऑन 30th? नो? यस, मेबी. Are you the owner of this goods on 30th? No, because dispatch हो गया ना इनवॉइस और माल दोनों 23rd और 30th के बीच में. और ओनर थे कि नहीं? आई मीन सॉरी, फिजिकल स्टॉक में थे कि नहीं on 30th? Yes. So what am I supposed to do? Subtract this also. लेकिन हाँ जी 9166. तो 1,50,000 हुआ ना कॉस्ट प्राइस. ये थोड़ी सी प्लस वहीं पे गया है, क्या कान ढूंढते बैठे. इसका तो कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 1,50,000. उसको भी अगर सी प्लस भी करना होता तो अलग क्यों करता मैं? टाइम पास करके. समझ में आया? ये इन दोनों भाइयों को अलग क्यों किया? ये बेचारा लॉस में बिका, ये प्रॉफिट में बिका. हमें रिकॉर्ड तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस करना. एक का कॉस्ट पता है, एक का इक्वेशन से लगा. समझा? है कि नहीं दिमाग में? घर में घुस गया है सब. Then come to your सेल और रिटर्न पार्ट. सेल और रिटर्न पार्ट वैसे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन है बहुत सिंपल. देखो सेल और रिटर्न में क्या दिया है आपने? 5,40,000 के गुड सेल और रिटर्न में भेजा, उसमें से आधे रिटर्न हो चुके हैं और आधे का जवाब नहीं आया. तो जो रिटर्न हुए हैं उसका क्या सीन है? वो 20 जो आधे रिटर्न हुए हैं ना, इसमें से 5,40,000 के हाफ जो रिटर्न हुए हैं वो कितना हुआ? 2,70,000 हुआ. ये 2,70,000 23rd और 30th के बीच में गया भी और वापस भी आ गया. लेकिन मैंने आपको बोला था इसको नलिफाई नहीं करना, इसको दोनों में लेना है, सेल और सेल्स रिटर्न. यस ऋषभ? सो सेल और सेल रिटर्न दोनों में लेने का इसको. ये समझा? गया भी और वापस भी आ गया. तो 23rd को भी वही है, 30th को भी वही है, सेम स्टॉक है. व्हाट अबाउट दिस 70? ये गया लेकिन अज्यूम्ड रिटर्न है क्योंकि इसका जवाब नहीं आया. तो अज्यूम रिटर्न में भी वही सीन है. अज्यूम रिटर्न मतलब रिटर्न. तो ये भी गया और आ गया. फिजिकली भले नहीं है, लेकिन अपने को तो ओनरशिप स्टॉक चाहिए ना, ओनरशिप तो आएगी. सही बात है. तो ये भी गया आया, ये भी गया आया, तो दोनों सेम ही है. दोनों सेल्स में भी लिखेंगे, दोनों सेल्स रिटर्न में भी लिखेंगे. तो दोनों को यहां से सब्ट्रैक्ट करना है. सेल्स दीज आर एसओआर वाले, बट एट सीपी करना है, ये अलग है. अब ये कौन से प्रॉफिट पे गया होगा? सी प्लस है ना. ये सी प्लस पे गया, इसका ढूंढो इंटू 100/120 करके पूरे